So, welcome everyone. Good evening to all. So, today we are going to continue with our discussion from the last class how to create presentation for our research presentation or the oral presentation for our research. So, today we will be discussing details about the various sections that we have to present. So, the first section is the introduction part. So, in introduction, the sense of the introduction is that we have to inform the audience of all the relevant background information of our research. Each bullet point should be concise summary of what we have done. We want to deliver it to the audience verbally. ठीक तो इंट्रोडक्शन में जो है वी हैव टू एक्चुअली वी हैव टू give the background of the things that we have used in our research. So the basics of the theoretical part or the theoretical basis of the concepts that we have used in our research, and um, it can be formulas that we have used, the basis of the formulas, from where the formulas have come, and what is the meaning of each and every component of the formula that we are going to use or that we have used. And also we'll have to explain the basics related to uh, the topics that we have covered in the research. सो जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी आपने किया है, उसका कुछ ना कुछ थियोरेटिकल बेसिस जरूर होगा. So those things we have to put in our introduction part. So introduction slide should contain in a bulleted point in my manner. So bullet points होने चाहिए, paragraph writing नहीं करना है. So the idea how to go for it is in this section where we have to explain why this research is important. Is because the importance of the research is also to be emphasized. Then only the audience will take interest in listening to what we are going to say, and we have to give the audience a broader impact of our research so that the uh, the 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 importance of the research actually is the main thing. uh, if we are able to explain the impact that it will create after our research is done to the community, whether it may be the no, the a set of people, or it can be academic community, it can be some other communities. For example, if you are say doing some forecasting related to weather and rainfall, say rainfall forecasting we are going to do, so there the farmers will get benefited, the community of the farmers will get benefited, and also uh, uh, places where it might rain heavily, there the government can help people to mitigate the flooding problems. Accordingly they can have some preventive measures. So इस टाइप से जो है इम्पैक्ट जो है आपका रिसर्च का, अगर आप प्रॉपरली बता पाएं इंटरेस्टिंग वे में, that will help the audience to stick to the entire presentation. So that is the important part because it is the मेन अट्रैक्शन, मतलब एक इनिशियल अट्रैक्शन जो होता है वो इंट्रोडक्शन से क्रिएट किया जा सकता है. Then comes the background or literature review. So that this I already we have discussed briefly that uh, from all the literature review that we have done, the major 5 to 6 maximum literature review part should be displayed in a tabulated form. So this will be a brief literature review for the audience, where we discuss the most relevant articles or texts that we have used in the research. So it can we might have used 60 or 100 papers during our literature review, but it is natural that only a few of them will be actually used for continuing the research. So the idea for the research must have come from a particular uh, paper or a set of papers. So उसको हमको मेंशन करना रहता है. So जिसको हम बोलते हैं कोर पेपर्स जो है उनको हम मेंशन करते हैं इन ए टैबुलेटेड फॉर्म, जिसमें जो है ऑथर डिटेल्स, द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, द the content which was discussed in the research, or the summary of the article that we have studied, and the inference that we have drawn from that article. So the inference जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें
कि आप बताते हैं कि आपने ये जो रिसर्च पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा है उसका अपने अपने हिसाब से क्या इन्फ्रेंस निकाला है, अरे उसको आप पुट अप करते हैं. So that becomes the basis for your research. So in this section, we would want to list the authors. We have to mention the author names and a brief statement about what had attracted you towards that particular work or the literature part. How did it help you to pave out the direction toward your research? So ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी ज़रूरी है. इसको एक तरीके का कहना चाहिए, आपका जो इंसाइट है फॉर दैट पर्टिकुलर पब्लिक फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर, उसको आपको इंसाइट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि आपको ये भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि उससे आपने अपने रिसर्च के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है. सो इफ यू आर साइटिंग अ टेक्स्ट, यू माइट वांट टू इंक्लूड एन इमेज ऑफ द बुक कवर. अगर बुक कवर है तो जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इमेज वगैरह नहीं डालते हैं. ये जो है जनरली हम लोग सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर एंड द ऑथर नेम एंड द नेम ऑफ द पब्लिकेशन उसको हम लोग डालते हैं. किस पर्टिकुलर हम जर्नल में से उसको अपन ने लिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन में हम देते हैं. In some cases, an example would be historical text. You may want to include an image of the author. अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, देन ओनली हम लोग इमेजेस यूज़ करते हैं, वरना हम लोग इमेजेस यूज़ नहीं करेंगे. हम सिर्फ उसको टैबलेटेड फॉर्मेट में लिटरेचर रिव्यू को प्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ वेरी डिज़ायरेबल इन ए टैबलेटेड फॉर्मेट. एंड इफ एट ऑल इट इज़ टू मच रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इसके बिना नहीं चलेगा, तो ही इमेजेस का यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना. ओनली टेक्स्ट शुड बी यूज्ड. देन कम्स द सो लिटरेचर रिव्यू का जो है फिजिकल साइंस क्या है, मतलब उसके फिजिकल उसके कैसे आप उसको रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे. दिस विल बी मोर ऑफ अ बैकग्राउंड सेक्शन, बट यू विल साइट योर सोर्सेस. आपको अपने सोर्सेस को साइट करना जरूरी है. दिस सेक्शन इज वेयर वी स्टार्ट टू डिस्कस अदर स्टडीज दैट हैव बीन परफॉर्म्ड. सो वी हैव टू डू a comparative that whatever has been done we have to specify, and what we are proposing to do we have to specify. So from that particular literature review आप जो है वो सब चीज़ें बताते हैं जो हो चुका है, और उसके इंसाइट्स को लेके आप फिर बताते हैं कि हम ये इसमें से आइडियाज निकालें. सो दीज आर द आइडियाज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर. सो इसीलिए 4-5 पेपर ही इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग पुटअप करते हैं, क्योंकि उसी में से आइडियाज हम लोग ने जो है सिंथेसाइज करके निकाला है. सो हियर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को बताया गया है, और इसमें 1,2 जो है सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है, लास्ट में देखिएगा. सो दिस पर्टिकुलर वे ऑफ रेफरेंसिंग इज ऑल्सो कैन बी डन. तो इसमें क्या होता है, आपको इमीडिएटली उसी टेक्स्ट के नीचे आपको उसको बताना पड़ेगा रेफरेंसेस को. दूसरा तरीका क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 आप लिख दें, और उसको लास्ट में जो रेफरेंस सेक्शन है उसमें आप उसको दे सकते हैं. आप चाहें तो यहाँ पे हाइपर लिंक्स दे के आपको आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द रेफरेंसेस, जिसको क्लिक करते ही आप रेफरेंस पे पहुंच जाएंगे. सो दिस कैन बी डन, बट जैसे अभी मैंने कहा कि इसको आप टैबलेटेड फॉर्मेट में पुट अप करें. सो उसमें क्या होगा कि आपको कहीं लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको सुपरस्क्रिप्ट देके बताने की जरूरत पड़ेगी. आप जो है डायरेक्टली एक टैबलेटेड फॉर्मेट में ऑथर नेम with the specific observation and your insights from that particular paper that has helped you in creating your own research, उसके बारे में आप जो है उसी एक tabulated format में बताएंगे. So that is the best way of representing the review of literature. Then comes the research questions. Research questions are very, very important. So research questions are what we are going to solve, or what we have identified from the literature review, जिसको बोल सकते हैं कि जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं अपने रिसर्च में, वो क्वेश्चंस जो है इट वी हैव टू स्टेट दोस क्वेश्चंस. सो स्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन, इट शुड स्टैंड अलोन ऑन दिस स्लाइड. सो क्वेश्चंस रहेंगे, अब बुलेटेड फॉर्म में देंगे उसको. दिस सेक्शन शुड नॉट बी फैंसी, विल बी मोस्ट लाइकली ओनली बी one or two sentences. The goal is to showcase your research questions so that your audience can let it sink in for the moment. So ये कहना चाहिए एक तरीके का आपका जो है आपका रिसर्च का ट्रेलर है कि आपने जो पूरे रिसर्च में क्या किस चीज को सॉल्व करने का कोशिश किया था, वो आप इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चंस वाले स्लाइड में डालते हैं.
रिसर्च क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन हो सकता है या एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको आप रिसर्च क्वेश्चन को जो है ऐसा कह सकते हैं कि इसको आप अपने हिसाब से इसका हेडिंग दे सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस में जनरली हम वो पॉइंट को पुटअप करते हैं जिसको यूज करके हमने रिसर्च को मतलब को का गोल सेट किया, एक्चुअली कह सकते हैं एक तरीके का गोल सेटिंग होता है। So in this particular slide, we have to put forward the goals of the research that we are going to achieve from the research. So उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं या तो आप पॉइंट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, बुलेटेड फॉर्मेट में. So both can be done. Depends upon which kind of a solution you are going to achieve from the research. So आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली देना पड़ता है यहाँ पे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं इन द रिसर्च. So here there can be more than one problem statements. अगर more than one problem statements हैं तो आपको स्पेसिफिकली अपने रिसर्च में दिखाना पड़ेगा कि आपने वो सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया है पॉइंट वाइज या स्टेज वाइज उसको सॉल्व किया है. उसको फेज वाइज डेवलपमेंट भी आप बता सकते हैं. सो रिसर्च क्वेश्चंस में आप फेज वाइज डेवलपमेंट के जो है वो एक आइडिया दे सकते हैं कि इसे इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस ये हैं, इनको ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे. सो तो रिसर्च क्वेश्चंस में बेसिकली हम वो पुटअप कर रहे हैं द मेन गोल ऑफ द रिसर्च. ठीक, मेन गोल या गोल्स ऑफ द रिसर्च. देयर कैन बी वन गोल और मल्टीपल गोल्स दैट वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू द रिसर्च. उसका हम यहाँ पे पुटअप करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस में. देन कम्स द रिसर्च मेथड्स. सो इसको मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं. मेथोडोलॉजी में जो है इट कैन बी अ मॉडल ऑल्सो. प्रपोज मॉडल भी बोल सकते हैं या प्रपोज मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं या रिसर्च मेथड्स भी बोल सकते हैं. सो रिसर्च मेथड्स में जनरली जो है जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने क्या यूज़ किया था वो आप बता सकते हैं अगर आप सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो. अगर आपके पास जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग रिसर्च है तो जनरली हम इंजीनियरिंग रिसर्च में एक मॉडल प्रपोज कर देते हैं यहाँ पे. सो रिसर्च मेथड में जनरली हम जो है अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन एंड द डेटा क्रिएशन के लिए. तो वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं. और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए जो है यहाँ पे हम द मॉडल प्रपोज्ड मॉडल जिसको बोलते हैं उसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं. सो दैट प्रपोज्ड मॉडल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट. सर ये सो समझ में नहीं ब्लॉक आया डायग्राम या फ्लो क्या? चार्ट के फॉर्मेट में उसको रखना है. एंड ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी रिसर्च मेथड में आप जो है पुटअप ये करते हैं कि आप जो है जैसे मैंने अभी कहा कि मैनेजमेंट अगर लाइन में है, अगर मैनेजमेंट रिसर्च चल रहा है, मैनेजमेंट रिसर्च में क्या होता है कि डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू, है कि नहीं. रिसर्च में यस सर. मैनेजमेंट रिसर्च में द डेटा कलेक्शन इज द यस सर. मेन एक्टिविटी देखा जाए तो. यस. उसके बाद फिर यस मॉडल सर. क्रिएशन होता है. तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं रिसर्च मेथड्स में कि आपने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे, कौन से सोर्सेज हैं आपके फॉर डेटा कलेक्शन, किस किस तरीके से आपने उसको डेटा कलेक्ट किया. डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसमें सैम्पलिंग क्या यूज़ किया आपने और वो टेक्निक्स क्या क्या यूज़ किया आपने सैम्पलिंग के. तो आपके आरएम के लेक्चर में जो आप पढ़ रहे होंगे वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं ओनली कनेक्टेड टू योर रिसर्च. तो सर जैसे हम लोग वो सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तब पढ़ रहे हाँ थे तो उसमें कई बुक में ये भी था हाँ कि परपोजिव सैम्पलिंग के में फिर तीसरा सैम्पलिंग आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग जो रेयर कैरेक्टरिस्टिक पे बेस होता है. हाँ ये भी उसमें दे रखा था और यहाँ पे आप इसको बता रहे हैं कि ये रिसर्च मेथड के अंदर आएगा. तो ये हाँ. थोड़ा इस सा पर्टिकुलर स्लाइड में आप कॉन्ट्राडिक्टरी उसको डाल होगा. सकते हैं. इस पर्टिकुलर स्लाइड में अच्छा, आप उसको डाल सकते हैं कि परपोजिव आपका, को डाल सकते हैं. हाँ हाँ, आपने टेक्निक्स जो यूज़ किए ना डेटा कलेक्शन के ओके लिए ओके. उसको आप इसमें हाँ डाल हाँ. सकते हैं. ओके ओके. क्या क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट रिसर्च में जनरली क्या होता है कि सर्वेज वगैरह करने के बाद फिर उसका एक एनालिसिस करके जो है जनरली एक आउटपुट हम एक प्रपोजिशन देते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट मतलब बनाते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है कि गलत है. ठीक है. तो हम उस टाइप से वर्क करते हैं मैनेजमेंट रिसर्च में. तो उसमें आप वो उसमें जो है डेटा कलेक्शन और सैम्पलिंग ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. ठीक है, किस टाइप के टेस्ट आप उस पर परफॉर्म करेंगे. तो वो सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. ठीक, तो वो सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं.
कई बार क्या होता है कि आपने अगर कोई नया प्रोसेस या एल्गोरिदम डिजाइन किया है, सो जनरली जो है वो मैनेजमेंट रिसर्च में कोई नया एल्गोरिदम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। अगर आपने किया है तो आप उस एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। सो जनरली इंजीनियरिंग रिसर्च में ऐसा रहता है कि हम एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और एल्गोरिदम उसमें बताते हैं कि हमने ये स्टेप्स करके हमारे रिसर्च को कंप्लीट किया है। सो फेज वाइज डेवलपमेंट जो है हम लोग एल्गोरिदम के बेसिस पे बताते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, विजुअली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं, या तो फिर उसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च में कि ये चीज़ें हम उसमें करेंगे और उससे जाके जो है हमको आउटपुट मिलेगा। तो उसमें भी जो है नेचुरली हम डेटा कलेक्शन जरूर करेंगे। जनरली क्या होता है, हम बहुत बेसिक वे में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ऑथेंटिक सोर्स से। इंजीनियरिंग रिसर्च में ऑथेंटिक सोर्स हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एक बेसिक क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद फिर हमारे मॉडल में उसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा मेन जो फोकस होता है मॉडल क्रिएशन में रहता है, जिसपे डेटा प्रोसेस होगा। सो इंजीनियरिंग रिसर्च में मॉडल इज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उस वो जो मॉडल होता है वो यूनिक रहता है, मतलब वो अभी तक बना नहीं है। उस मॉडल को हमने बनाया है और उस मॉडल को यूज करके हमने जो है कुछ रिजल्ट अचीव किए हैं। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम मॉडल को पुटअप कर देंगे, जिस प्रपोज मॉडल जो है हमारा वो आ जाएगा। और अगर मैनेजमेंट रिसर्च है तो इसमें जो मेथोडोलॉजीज हम यूज करेंगे फॉर परफॉर्मिंग द रिसर्च, फॉर डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्यूरिफिकेशन, वो सब चीजें हम इसमें डालेंगे। ठीक। सो जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे रिसर्च मेथड में कि जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने किया है, तो ये जनरली इंजीनियरिंग रिसर्च में रहता है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है, सेटअप किया है। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में यहाँ पे आप बताएंगे कि उस पे आप कैसे वर्क कर रहे थे और उस पे किस टाइप से आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। ठीक है। सो इंजीनियरिंग रिसर्च में जनरली ऐसा होता है, क्योंकि साइंस साइंस इंजीनियरिंग में जो है वी सेटअप अ पर्टिकुलर लैब, जैसे लैब को सेटअप करते हैं जिसपे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसको फिर जो है हम बताते हैं कि हमने ये इन्फ्लुएंसेस क्रिएट किए। सो वो मेथड्स के बारे में यहाँ पे हम बताते हैं। सो ये जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट रिसर्च के लिए भी है और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कंटेंट चेंज हो जाएगा। कंटेंट जो है वो मैनेजमेंट रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन और सैम्पलिंग वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट उसमें ज़्यादा एम्फसाइज होगा। और इंजीनियरिंग रिसर्च अगर है तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप या मॉडल क्रिएशन, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपका फोकस उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। Sir, somebody's सर mic is on. It's creating सर सब disturbance. किसी किसी का माइक ऑन है सर, वो प्रेरणा मैम का ऑन है, वहां से आवाज आ रही है। अच्छा, एक सेकंड, मैं माइक को बंद कर देता हूँ। ठीक, स्विच ऑफ कर दिया माइक को। ठीक। सो रिसर्च मेथड्स के बारे में हम वही मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग रिसर्च और मैनेजमेंट रिसर्च में बहुत बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इंजीनियरिंग रिसर्च में जो है मॉडल क्रिएशन और मॉडल प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, या जो मेथोडोलॉजी अपन यूज़ की जाए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने बनाया है उस पर वर्क किए हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा रिसर्च मेथड में। और मैनेजमेंट रिसर्च अगर है तो उसमें सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन कैसे किया गया, फ्रॉम विच सोर्सेज वी हैव कलेक्टेड द डेटा, हाउ वी हैव प्रोसेस द डेटा, एंड हाउ इन हाउ वी थिंक दैट आवर डेटा इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। तो इस टाइप के जो जो उसमें प्रूफ्स आपको बताने पड़ेंगे कि आपका डेटा जो है इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, एंड वेरियस मेथड्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। वो सब पॉइंट जो है यहाँ पे रिसर्च मेथड्स में हम डालते हैं, इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं फॉर मैनेजमेंट रिसर्च। और इंजीनियरिंग रिसर्च के बारे में जैसे अभी मैंने बताया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड मॉडल क्रिएशन, जिसको फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। Next slide will be the findings. Findings will be we can achieve the findings only after experimentation. So after we have done the experimentation, we must be getting some results. So from those results, we are going to perform some in-depth analysis of the results, and we have to present the points that we have observed from the output. So model को input देने के बाद, data देने के बाद जो आपको output मिल रहा है, that is the findings। ठीक है। उसके ऊपर जो आप रिसर्च, मतलब उस पर फिर आप एनालिसिस करते हैं, जो आउटपुट मिल रहा है उस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगता है ये फीचर्स हमको दिख रहे हैं, या ये चीज़ें जो है वो ट्रू हुए हैं, ये चीज़ें फॉल्स हुई हैं।
वो सब चीज़ें आपको फाइंडिंग्स में बतानी पड़ती हैं। मतलब आपका जो आउटपुट आया है, आउटपुट का इन डेप्थ एनालिसिस जब आप करेंगे, दैट इज योर फाइंडिंग्स. So in this section we want to clearly organize and display our data and findings. So यहाँ पे आप डेटा को भी बताएंगे. So ये जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेबलेटेड फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट when we are representing data we don't need to put the entire data here. उससे स्नैपशॉट आप दे सकते हैं डेटा का, लेकिन डेटा का इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, उसका स्क्यूनेस क्या है, उसका कुर्टोसिस क्या है, और उसके कुछ स्टैटिस्टिकल फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे डेटा का, जिस डेटा को आप यूज कर रहे हैं. यू माइट बी यूजिंग मोर देन वन कैटेगरी ऑफ डेटा या वन मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा. तो हर टाइप के डेटा के लिए आपको उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दिखानी जरूरी है. So that helps the audience to understand that you know completely about your data. You just have not just gathered data just for experimental purpose, but you have experimented on the data, you have understood about the data, you have done some in-depth analysis on the data. So जिसको हम वो बोलते हैं statistical analysis of the data, इसको put up करना जरूरी है. So first you have to show the data that you have used, and then you have to show the statistical analysis that you have performed on that particular data that you have used for as an input for your model. So after that you have to suggest, you have to give the idea that you have put that particular data in the model and the model has generated some output, and that from that output you have found some inferences. उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसको कैसे किया, आपने कैसे समझा कि ये क्या चीज है. तो इसमें भी जो है आपको कुछ रेफरेंसेस देने पड़ सकते हैं कि आपने वहां से पता लगाया कि उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन में या उस पर्टिकुलर बुक में या उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐसा एनालिसिस किया गया था डेटा पे, आउटपुट पे, तो मैंने भी उसी टाइप का एनालिसिस किया है और मेरे को ये आउटपुट मिला है. द रीजन इज वेरी सिंपल दैट आफ्टर यू हैव अचीव द आउटपुट, you have to compare the output with already existing outputs. मतलब जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है उसमें से जो आउटपुट्स मिले हैं और आपका जो आउटपुट्स आपको मिला है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा. बिना कंपेयर किए आप एक कंपैरेटिव स्टडी नहीं दिखा सकते, उसको फिर जो है ऑथेंटिक नहीं माना जाता है. तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो डेटा ऑर्गेनाइज करना है. डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है. डेटा के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी होना चाहिए. उसके बाद स्टैटिस्टिकल जानकारी होना चाहिए. देन यू हैव टू पुट द डेटा इन द मॉडल. व्हेन योर मॉडल जनरेट्स एन आउटपुट, यू हैव टू कंपेयर द आउटपुट विथ ऑलरेडी अचीव्ड आउटपुट्स ऑफ अदर रिसर्चर्स. तो उसमें आपको रेफरेंसेस बताने पड़ेंगे कि उस रिसर्च जो आपने लिटरेचर रिव्यू में बताया कि उस रिसर्च में ये हुआ था, ऐसा आउटपुट मिला था, तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा रहा, मेरा आउटपुट ये मिल रहा है, तो मेरा और आउटपुट और वो जो रिसर्च किया गया था उसके आउटपुट में ये डिफरेंस है. मेरा परफॉर्मेंस मेजर्स जो मैंने यूज किए थे उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस आ रहे हैं. वही सेम परफॉर्मेंस मेजर्स जो है उस रिसर्चर ने भी यूज किया था, उसका परफॉर्मेंस ये आ रहा था. तो मेरा परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, इज इट बेटर और इज इट नॉट अप टू द मार्क, वो आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स बताना पड़ता है. तो वो बहुत ही डिटेल में रहता है. ये आपका एक तरीके का कहना चाहिए आपका एक फाइनल वो है, एक शस्त्र है जिसको आप दिखाते हैं, जो जिससे कि जो है यू हैव अ कॉन्फिडेंस दैट योर रिसर्च इज गुड. सो ये तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसको पुराने रिसर्च से कंपेयर करेंगे, जो हो चुके हैं उन रिसर्च के परफॉर्मेंस मेजर्स को यूज करके कंपेयर करेंगे अपने रिसर्च के परफॉर्मेंस मेजर्स को यूज करके. ठीक. सो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो परफॉर्मेंस मेजर्स जो होते हैं वो आपके डेटा के और आपके रिसर्च के रिलेवेंट होना चाहिए. हर जगह जैसे हम कई बार निकालते हैं मीन स्क्वायर एरर. सो मीन स्क्वायर एरर जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है. जनरली मीन स्क्वायर एरर जो है बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है फॉर प्रेडिक्शंस, जहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं. तो प्रेडिक्शंस में जिसमें आपके पास ऑलरेडी कुछ आउटपुट्स हैं और आप जो है नया आउटपुट जनरेट कर रहे हैं या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट को जो है आप कंपेयर करते हैं, तो उसमें जनरली हम मीन स्क्वायर एरर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ऐसे बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर जिसको परफॉर्मेंस मेजर्स कहा जाता है. सो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द रिसर्च दैट यू आर डूइंग एंड द डेटा दैट यू आर डूइंग, that you're using. So you have to be very should have a very in-depth understanding of how to
एनालाइज योर परफॉर्मेंस ऑफ द आउटपुट। ठीक, सो परफॉर्मेंस ऑफ द आउटपुट को मेजर कैसे करना है, इसके बारे में आपको एकदम क्लियर कट जानकारी होना चाहिए। पुराने रिसर्च से आपको पता लग जाएगा, जो पुराना रिसर्च हो चुका है उसी लाइन में, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उससे आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स यूज किए गए थे उनमें। तो आप उन सेम परफॉर्मेंस मेजर्स को अपने लिए यूज कर लें, और उसका आउटपुट और आपके आउटपुट को के परफॉर्मेंस को आप जो है कंपैरेटिव स्टडी करके थ्रू ए ग्राफ और चार्ट आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो हियर ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, टेबल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर। अब यहाँ पे टेबलेटेड फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंटेशन करना ठीक उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, कर सकते हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और एंड ऑल्सो द ऑडियंस विल एक्सपेक्ट दैट यू हैव टू डिस्प्ले सम चार्ट्स। जैसे हमने जो है लास्ट टाइम जब हम एमएस वर्ड, जब हम वो, मैं बता रहा था, हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कशन जब कर रहे थे, तो जनरेट हाउ टू जनरेट अ ग्राफ, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक छोटा सा मैंने सैम्पल टेबल बना दिया था, उसमें जो है कुछ डेटा मैंने डाल दिया था, दैट एक्चुअल डेटा एंड द प्रेडिक्टेड डेटा। अब उसके बेसिस पे अपन ने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ में तुरंत जो है बहुत आसानी से समझ में आ रहा था कि हमारा प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कितना है। So that kind of a representation is required. So graphs or charts are very very necessary when you are proposing your findings. So let the data do the talking. So through graphs only it can be done. So in this section, just explain the graphs, charts, and images that you are presenting to the audience. You will analyze and discuss the data in the next section. So इसमें जो है आपको पहले तो आपको परफॉर्मेंस दिखा देना है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, सो तब जाके, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर डूइंग द रिसर्च बिकॉज समथिंग गुड इज हैपनिंग, सो नेचुरली दैट गुड वी हैव टू प्रेजेंट हियर। सो डूज एंड डोंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? नॉट एवरी टेबल एट ग्राफ इज गुड, सो रिमेंबर दैट टैबलेटेड फॉर्मेट में डेटा देना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, प्लस इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है, इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा उतना। लेकिन टैबलेटेड फॉर्मेट में डेटा डालना जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं काफ़ी बार ऐसा ज़रूरी होता है। तो सिर्फ टैबुलेटेड फॉर्मेट में डेटा को रखना ठीक नहीं है, उसको उसके ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा को जरूर रखें। सो डू योर बेस्ट टू डिस्प्ले योर डेटा इन मोस्ट क्लियर कंसाइज वे। सो नेचुरली बहुत ज़्यादा उसमें क्लटरिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्पार्स। बहुत ज़्यादा एकदम क्लटर्ड नहीं होना चाहिए डेटा जो दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। रिमेंबर दैट योर ऑडियंस विल ओनली हैव ए मिनट और लेस टू व्यू द टेबल और ग्राफ, because the entire presentation you have to finish it within 15 minutes. So आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा to explain each and everything from the tables. So better to use graphs. So convert the table to graphs. So only for visual purposes table को दिखा दें, immediately table के next slide में आप उसका graph बता दें. So that will give you give the audience a very quick understanding of the achievement that you have done from the research. सो दिस काइंड ऑफ ए थिंग इज बेटर। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ, यहाँ पे जो टेबल है, दैट इज पर्पल स्नेल्स एंड ग्रीन स्नेल्स का कुछ डेटा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में इनका प्रोडक्शन के ऊपर जो है एक डेटा दिया है। सो ये जो डेटा है, इससे आप हमको उतना अंदाजा नहीं लगेगा कि किस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था उसके कारण। सो जैसे आप उसको ग्राफ फॉर्मेट में दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बर्थ जो है वो वाई एक्सिस में है, और मंथ जो है वो एक्स एक्सिस में है। पर्पल स्नेल्स और ग्रीन स्नेल्स को पर्पल और ग्रीन कलर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ के थ्रू। सो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, इससे आपको तुरंत समझ में आएगा कि सितंबर में ग्रीन स्नेल जो है उनका सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गया था, अगस्त में पर्पल स्नेल्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा था। कितना आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक, so this is the effect of the graphs. So this is how we have to represent the graphs. So either use MS Excel to create the graphs from the tables, or you can use Python to generate graphs if you are quite well versed with Python programming. There also the graphs can be created very easily. तो सर एक आपके चीज पूछनी थी हिसाब से, जी जी बोलिए। सर, जब भी हम ये ग्राफ बनाएंगे ये बिना एक्सेल के तो बन नहीं सकता। हाँ, जैसे ये आपको टैबलेटेड फॉर्मेट में रहना चाहिए आपका डेटा, उसी से ग्राफ तो हम बनेगा। वहाँ
वो एक्सेल में जाके करेंगे, और जो आपने बताया तो ऊपर ग्राफ के कई सारे ऑप्शंस आते हैं, हाँ हाँ हिस्टोग्राम, बार ग्राम, बिल्कुल लाइन बिल्कुल चार्ट, उसमें के बिल्कुल। एक चेक कर देंगे वो हो जाएगा। हाँ, जो भी आपका अप्रोप्रिएट लगे ना, बेस्ट लगे, वो उसको अपने आप, आप कैलकुलेट कर लेगा, हमें वो अपने आप करेगा, वो अपने आप करेगा। आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ दिखाने से जिसको बोलते हैं ना मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा टू द ऑडियंस, उस टाइप का ग्राफ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक। ओके सर, ओके। जैसे कई बार क्या होता है, मार्केट शेयर के बारे में हम बताना चाहते हैं, तो मार्केट शेयर को जनरली हम पाई चार्ट में बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, बहुत ही इजीएस्ट वे ऑफ टू रिप्रेजेंट मार्केट शेयर, तो उसको पाई चार्ट के थ्रू बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ बर्थ्स के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें जो है ये बार चार्ट बहुत बढ़िया है। और कई बार हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह दिखाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं अपने डेटा का, तो उसको अब हम हिस्टोग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से दिख जाता है, कहाँ पे पीक है, कहाँ पे ट्रॉफ आ रहा है, वो बहुत आसानी से दिख जाता है। ठीक। सो इट डिपेंड्स एंटायरली विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू पुट अप for the audience, so that the audience can understand it in a very small, very fraction of second में सबको समझ में आ जाए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहां तक पहुंच जाए। तो उस टाइप के ग्राफ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइन ग्राफ है या बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है या पाई चार्ट है। सो इट ऑल डिपेंड। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा जो रिसर्च था दैट वाज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग, सो आई हैड टू डिस्प्ले माय डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार, ये कैंडल स्टिक चार्ट। तो मैं अपना डेटा लेके मैंने कैंडल स्टिक चार्ट पे उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया, टू गिव एन आइडिया कि मेरा डेटा कैसे दिखता है। सो जिस डेटा को मैंने यूज किया था, उस डेटा का मैंने कैंडल स्टिक चार्ट बनाया, उसको अपने प्रेजेंटेशन में डाल दिया। सो जो देखने वाले थे उनको तुरंत समझ में आ गया कि मेरा जो डेटा है वो कैसा दिखेगा। मेरा क्या डेटा था कि हर एक दिन का ओपन हाई लो क्लोज का डेटा मुझे दिखाना था। और ऐसे मेरे पास जो है कई दिनों के डेटा थे, कई एक्चुअली कई सालों के डेटा थे। तो मैं एक सैंपल दिखाना चाहता था कि कैसा दिखता है। तो आई यूज OHLC चार्ट, वो भी एक्सेल में मुझे मिल गया था। सो डिपेंड्स विच काइंड ऑफ ए थिंग यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन देना है उसके हिसाब से बार चार्ट यूज करिए, पाई चार्ट यूज करिए, हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज करें, इट्स वेरी यूजफुल। ठीक। तो उनको यूज करना है, चार्ट्स यूज करना जरूरी है। बिना चार्ट के अगर प्रोजेक्ट आपका अगर प्रेजेंटेशन बन रहा है तो समथिंग इज मेजरली लैगिंग, उसको ध्यान में रखिएगा। चार्ट्स के बिना आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक। सो टैबुलेटेड फॉर्मेट में डेटा को तो दिखाना ही दिखाना है, साथ में उसी से रिप्रेजेंटेटिव आपको चार्ट भी दिखाना है, क्योंकि इस पे फिर आपको के कुछ इनडेप्थ जो आपके इंसाइट्स हैं, एनालिसिस हैं, उसको आपको समझाना भी पड़ेगा। जैसे अभी इस पर्टिकुलर चार्ट में हम समझा रहे हैं कि द ग्रीन स्नेल्स वर हाईएस्ट इन पॉपुलेशन इन सितंबर एंड पर्पल स्नेल्स वर हाईएस्ट इन पॉपुलेशन इन अगस्त। सो दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन इन दिस पर्टिकुलर डेटा। सो इस टाइप से जो है आपको सोचना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। सो कंक्लूजन्स जो है इट विल बी कोइंसाइडिंग, इट शुड बी कंप्लीटली कोरिलेटेड विद द गोल्स दैट वी हैव सेट। तो शुरुआत के स्लाइड्स में जो आपने गोल्स, जिसको बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, जो आपने पुटअप किए थे, उन रिसर्च क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स यहाँ पे आपको मिलने चाहिए। सो उनको आप पॉइंट वाइज यहाँ पे बता देंगे कि ये क्वेश्चन था, या क्वेश्चन के बारे में अगर नहीं भी बोले तो उसको आप स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था, उसका सोल्यूशन ये है। सो कंक्लूजन में आपको उसका सोल्यूशन बताने पड़ेंगे। वॉट एवर प्रॉब्लम्स that you have perceived, that you thought you will be solving, all those questions are solved, all those problems are solved, उसको आप कंक्लूजन में डालेंगे। एंड डिस्कशन में जो है, जो भी आपका डेटा का इन डेप्थ एनालिसिस था, अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग हुआ, इसमें आपको इसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखाना पड़ता है। सो ये जो पोर्शन है इसको फाइंडिंग्स एंड डेटा में, इसमें आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुका था उसका फाइंडिंग्स और आपने जो अभी रिसर्च किया उसका फाइंडिंग्स, दोनों का परफॉर्मेंस मेजर्स का भी एक चार्ट आपको दिखाना है यहाँ पे। उसका भी एक कंपैरेटिव टेबल होना चाहिए और उसका एक चार्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ एक्चुअली चार्ट तो नहीं, ग्राफ बोलेंगे उसको, ग्राफ होना चाहिए। सो दैट विल हेल्प द ऑडियंस टू अप्रिशिएट दैट योर प्रपोज मॉडल इज परफॉर्मिंग बेटर देन द प्रीवियसली प्रपोज मॉडल्स। तो ये आपको सर अपने, इसको हाँ
सर इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड करके दिखा सकते हैं क्या, कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहले किया हुआ है और राइट हैंड साइड पे जो हमने किया है, हाँ या वो उसको मर्ज बिल्कुल, करके हाँ दिखाना है, बिल्कुल कैसे उसको दिखाना ऐसे है? दिखाना पड़ता है जनरली। हम जो है उसको कंपैरेटिव जो है उसी टाइप से दिखाते हैं कि जो है पहले जो हो चुका है और अभी अपन ने जो किया है उसके कंपैरेटिव हम तुरंत के तुरंत दिखाते हैं, जिससे कि जो है ना इमिडिएटली समझ में आता है कि हमारा बेटर है। तो उसको जो है जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मॉडल बनाया है जो प्रेडिक्शन करता है, तो आपने जो प्रेडिक्शन की उसकी जो एक्यूरेसी आई है, और वही डेटा पे जो है पहले जो रिसर्च हुआ था उस वो मॉडल्स पुराने मॉडल्स यूज करके जो एक्यूरेसी आई है, आपका एक्यूरेसी और उनका एक्यूरेसी जो है उसमें फर्क दिखना चाहिए, आपका बेटर दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप से आपको पुटअप करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही आप डिस्कशन पे आ सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन पे तभी आएंगे जब आपका आउटपुट बेटर है देन द प्रीवियसली परफॉर्म्ड ऑपरेशन रिसर्च। सो सर आपको जो अगर है, ये किसी हाँ किसी केस में ये अगर रिवर्स मार जाए तो क्या करें? फिर ऐसा तो भी हो मतलब सकता हो। देखिए रिसर्च तो हम तभी देखिए हम अपने प्रेजेंटेशन को तभी देंगे दिखाएंगे जब हमारा रिसर्च बेटर है। क्योंकि हम अगर हमारा यस सर। रिसर्च अगर बेटर नहीं है तो हम अपना प्रेजेंटेशन क्यों बनाएंगे? बनाएंगे ओके ही नहीं। सर। ठीक है, हमारे रिसर्च के तरीके को चेंज करना पड़ेगा ना। जब तक ओके हमारा सर। बेटर रिजल्ट्स नहीं आएगा तब तक हम उसको क्यों दिखाएंगे? लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा भी कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो जिस रास्ते पे जाना नहीं है उस रास्ते को भी अगर हम बता दें तो भी लोग भटकने से बच सकते हैं। तो वो भी एक डिस्कशन में आप डाल सकते हैं कि हमने पहले ही करके देखा था तो हमारा रिजल्ट बहुत खराब आए थे। तो वो जग उस पे मत जाइए। हमने अभी नया कोई टेक्निक यूज किया है जिससे कि हमारा रिजल्ट बेटर आ रहा सर है। तो जैसे हम ये हाँ। कह सकते हैं कि जैसे कि पिछली रिसर्च जो थी वो हम्म। एबीसी मॉडल पे बेस्ड थी। हाँ हमने भी एबीसी मॉडल पे हाँ बेस्ड रिसर्च किया। हमारा हमारा जो डाटा के हिसाब से हाँ रिजल्ट ये आया, हाँ उनका रिजल्ट ये आया, उनका हाँ बेटर था। लेकिन अगर हम एबीसी मॉडल की जगह एक्स वाई मॉडल लेते हैं, तब एग्जैक्टली हमारा डाटा जो है वो बेटर आता है और इन कंपैरिजन टू एबीसी मॉडल। तो एग्जैक्टली ये हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने एकदम करेक्ट पॉइंट पकड़ा है। एग्जैक्टली यही करना है। ठीक है, इससे जो है ना बहुत मतलब बोलना चाहिए ऑथेंटिक हो जाता है आपका रिसर्च। ठीक है, एग्जैक्टली यही करना है। ठीक। सो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसी चीज को एम्फसाइज करते हैं हम लोग कि जो तरीके से किया जा रहा था वो तरीका उतना इफेक्टिव नहीं रहा। नया तरीका जो हमने फाइंड आउट किया है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो इससे जो है हमारा एक बहुत सॉलिड एक कॉन्क्रीट हमारा एविडेंस बन जाता है कि हमारा रिसर्च बेटर है और अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रिसर्च का जो वर्च्यूज हैं इसको जरूर बताएंगे डिस्कशन और कंक्लूजन में, कि अपने रिसर्च का वर्च्यूज को जरूर बताएंगे। और ये भी बताना यहाँ पे जरूरी है कि कौन सा रास्ता अपनाना नहीं है, कौन से रास्ते को अपनाने से रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं या ठीक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और कौन सा जैसे हमने जो रास्ता अभी अपनाया है उससे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे बतानी है। सो दिस इज वेयर द डिस्कशन एंड कंक्लूजन शुड बी देयर, जहाँ पे आप अपने रिसर्च का वर्च्यूज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और पुराने रिसर्च के बारे में भी बताएंगे कि उस पर्टिकुलर मेथड से हमने जो अपने डेटा पे काम किया तो उतना अच्छा नहीं आया था। जैसे अपने मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम द रिसर्च। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेयर वी हैव टू एनालाइज एंड डिस्कस द आंसर्स यू हैव obtained from the data in the previous slide that we have shown. So do not make this slide too overwhelming, but rather keep it to the main findings. So आपका जो जो आपका गोल्स थे आपके, you have achieved the goals, ये आपको यहाँ पे बताना है कि that successfully the goals are achieved. In the future research section अब ये एक और स्लाइड होगा जिसमें आपको फ्यूचर प्रपोज मतलब फ्यूचर स्कोप जिसको बोलते हैं फर्दर स्कोप या फ्यूचर स्कोप जो है यहाँ पे आप बताएंगे जहाँ पे you will suggest that if this kind of a thing is done or this kind of a extension is done to the current project, then an additional research can be done. So आपको propositions यहाँ पे देने हैं related to future aspects of the result of the research. So आपके रिसर्च को अगर कोई एक्सटेंड करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसका आपको यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज बताने हैं कि आपको आपके रिसर्च को यूज करके फिर और फर्दर इसमें क्या एक्सटेंशंस किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये
जो अपकमिंग रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं, और जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बिकॉज दिस हेल्प्स द न्यू रिसर्चर्स टू स्टार्ट द रिसर्च। सो आप जो है गाइडलाइंस दे देते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें। सो स्टेट योर गोल्स इन ए बुलेटेड फॉर्मेट, एड ए सेंटेंस अबाउट व्हाई यू बिलीव द रिसर्च शुड गो ऑन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अ फ्यूचर डायरेक्शन बताना है। यू मे वांट टू ब्रीफली मेंशन हाउ यू प्लान टू इम्प्लीमेंट दीज रिसर्च गोल्स, क्योंकि जो जो इसको एक्सटेंड करेंगे वो क्या क्या करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके एक ब्रीफ में आप पॉइंट्स बता सकते हैं, यहाँ पे बताना चाहिए। ठीक। सो यहाँ पे जो है फ्यूचर रिसर्च जो है ये एक स्लाइड जरूर होना चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है, काफी लोग जो है इस स्लाइड को डालते नहीं है, लेकिन ये स्लाइड डालना जरूरी है। इससे ये पता लग जाता है कि आपने अपने रिसर्च को बहुत ही डेप्थ में किया है, और आपको मालूम है इसमें और आगे क्या हो सकता है। तो यू नो ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रिसर्च। मतलब कहना चाहिए एक तरीके से कि ये पूरे, जैसे आपने ये रिसर्च किया है, इसका मतलब इस रिसर्च के बारे में आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। ये प्रूव हो जाता है इस पर्टिकुलर स्लाइड से, जो फ्यूचर रिसर्च के स्लाइड होता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि आपने इतना डेप्थ में इसको स्टडी किया है कि आपसे भी कोई बाद में आके कांटेक्ट कर सकता है फॉर गाइडेंस, या तो आपको कोई हायर कर सकता है। इफ इट इज ए कमर्शियल काइंड ऑफ ए रिसर्च, तो आपको हायर भी कर सकते हैं एज ए रिसर्चर, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, so that this research can be taken further. So you actually prove your expertise in this particular research, and the research should be such a way that uh, anybody, if in this particular topic, if somebody says that ये रिसर्च एक टॉपिक है, तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए कि यू आर द एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये इस टाइप का आपका जो है एक इससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इफ यू प्रपोज अ वेरी गुड रिसर्च पाथवे, फ्यूचर रिसर्च पाथवे, इसमें आपको प्रेजेंट करना अच्छा होता है। ठीक। लास्ट में आता है रेफरेंसेस। सो रेफरेंसेस में जो है प्रॉपर स्टाइल फॉलो करेंगे। फॉर्मेट जो है एपीए, एएसए, एसीएस, एमएलए, चिकागो स्टाइल, IEEE, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करें थ्रू आउट। जो आप यूज करेंगे अपने थीसिस बनाने के लिए, एग्जैक्टली वही रेफरेंस स्टाइल यहाँ पे यूज करेंगे लास्ट वाले पेज में, रेफरेंसेस वाले सेक्शन में, विद प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, दैट इज अप्रिशिएटेड। और नेचुरली आप जो है अपने टेक्स्ट में, अभी जो प्रेजेंटेशन में 5 या 6 ही आपने बताए होंगे, तो 5 या 6 रेफरेंसेज यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है। और बाकी के लिए बोलेंगे कि अगर आपको रेफरेंसेस देखने तो आप एक हाइपर लिंक दे देंगे। हाइपर लिंक देके आपके टेक्स्ट की तरफ आप उसको लिंक बना देंगे, जहाँ पे आपका से 100 या 150 रिसर्च पेपर्स का जिस रेफरेंसेस आपने यूज किया है आपके इसमें थेसिस में, उसको आप वहाँ पे रिडायरेक्ट करके दिखा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। जनरली कोई देखता नहीं है, वो 4 या 5 मेजर रेफरेंसेस को ही लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे वो 4 या 5 जो रेफरेंसेस हैं उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। और इफ दैट फॉर्मेट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, जो आपके थीसिस में है एग्जैक्टली वही फॉर्मेट यहाँ पे भी आप रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। लास्ट में एक्नॉलेजमेंट्स आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थैंक यू वाला सेक्शन आता है, जहाँ पे यू शुड बी थैंकिंग योर फैकल्टी मेंटर, योर सुपरवाइजर्स, को सुपरवाइजर्स, organization, your head of the department, and people who have helped you, given you time, or given you resources, or allowed you to do your research during your say duty time। इस टाइप का अगर है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। सो those you might be you might have got some help from your colleagues, उनका भी आप नेम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने जो है कुछ मेरे जो है फ्रेंड्स हैं उनका नाम मैंने एक्नॉलेजमेंट में डाला था, जिनका हेल्प से मुझे जो है कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोड करने में हेल्प मिला था। और कुछ लोगों का नाम मैंने डाला था जिन्होंने मैंने अपने रिसर्च पे जो प्रेजेंटेशन है, मेरा थीसिस का एक बेसिक जो आउटलाइन था उसको मैंने दिखाया था, तो उसमें से गलतियां बताए थे मुझे, तो मैंने उन गलतियों को ठीक किया था, तो उनका भी नाम मैंने मेंशन किया था। तो इस टाइप से एक्नॉलेजमेंट्स में आप जो है उनके नेम्स मेंशन कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करना नहीं है, ब्रीफ में रखना है। ठीक। और लास्ट वाला स्लाइड जो है एनी क्वेश्चंस वाला स्लाइड बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस वाले स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है,
एनी क्वेश्चंस मतलब आप क्या होगा, इट इज ओपन टू द ऑडियंस. सो ओपन टू द ऑडियंस होने से हो सकता है ऑडियंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं जिसके आंसर आपको मालूम नहीं हो अभी. तो उसके लिए आप द बेस्ट answer is that I actually don't know the answer to that, but it is a great question. I will look into it and revert you back. अब जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका आप ईमेल आईडी रख लें, या कॉन्टैक्ट, जनरली ईमेल आईडी रखते हैं हम लोग, और उनके ईमेल आईडी में आप उसके आंसर को ढूंढ के उसको भेजें. सो दैट गिव्स एन ऑथेंटिसिटी दैट आप जो है एक ऑथेंटिक रिसर्च कर रहे हैं. एक बात. दूसरी बात यह है कि अगर आंसर नहीं मालूम है तो बना के कुछ नहीं बोलना है. बिल्कुल भी क्रिएटिविटी यूज नहीं करना है कि मुझे ऐसा लगता है ऐसे बोल के, बिल्कुल भी, जब तक आप कंफर्म नहीं है. इफ यू आर कंफर्म अबाउट द आंसर देन गो ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट इफ यू आर नॉट कंफर्म अबाउट द आंसर देन better take their email id and assure them that you will answer them later on, after you perform some research on that, on those questions. And definitely फिर आप उसको उसको उनको उनको आप जो है अपना ईमेल जरूर, मतलब रिप्लाई जरूर करें विद द आंसर्स. सो ये बहुत ज़रूरी होता है. जैसे मेरा जब पीएचडी प्रेजेंटेशन हुआ था, जब फाइनल प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो वाइस चांसलर सर ने जो है एक दो क्वेश्चंस पूछे थे जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थे. मैं एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में, मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स मेरा उतना इन डेप्थ नहीं है. तो सर ने जो है, वीसी सर ने मेरे से तो कुछ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस पूछ लिए थे. तो मैंने सर को बोला था कि सर जो है अभी तो मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा मेरे, बट आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. सो उसके बाद फिर मैंने उस क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए. जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया उसके करीबन एक हफ्ते बाद, जब मैं उसके आंसर्स निकाल लिया था, फिर मैंने एक हफ्ते बाद फिर वीसी सर से जाके मिला यूनिवर्सिटी में, और फिर उनको जाके जो मैंने अपने उनके क्वेश्चंस मैंने बताया कि आपने क्वेश्चंस पूछे थे सर, और ये उसके आंसर्स है. तो दैट क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन दैट आपको अपने रिसर्च को लेकर आप वेरी सीरियस हैं, एंड यू नो, यू वांट टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड यू आर वेरी मच एक्टिव अबाउट द रिसर्च. सो इस टाइप से जो है आप अगर करें तो इट इज बेटर. मतलब एक सजेशन है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सजेशन है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन रिलेटेड आइडियाज. सो जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन रिलेटेड आइडियाज दिए हैं, इसको आप एज ए गाइडलाइंस माने. You can have your own ideas, you can use your own ideas, no problem, but these are the guidelines actually. इनके इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगा. So hopefully the thing that I wanted to explain is clear. Is there any questions related to the matter that we have discussed now? So do we have any questions? सर एक क्वेश्चन है. जी हाँ, बोलिए. सर कभी कभी जैसे हम लोग ये रिसर्च पेपर बनाया, जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर कोविड-19 पे किया था, उस पे मैं प्रेजेंटेशन की जब बात हुई तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था. यहाँ प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के समय नहीं पूछा गया कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछा गया कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन 4 या 5 स्लाइड से ज्यादा नहीं हो, मतलब मैक्सिमम 4 हो. तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे सम अप करेंगे कि हमें 4 स्लाइड के अंदर ही अपने प्रेजेंटेशन को सम अप करना है समहाउ, तो उसमें हम तो फिर सब चीज नहीं डाल सकते हैं. तो उस केस में हम कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज लें जो 4-5 स्लाइड के अंदर आ जाए? देखिए क्या है कि अब जैसे अब हम जब रिसर्च प्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो हम जनरली इसको जो है कमिटी के सामने पुटअप करते हैं. जैसे आरडीसी या डीआरसी कमिटी के सामने पुटअप करते हैं, तो वो कम से कम हमको 15 से 20 मिनट मिलता है. ठीक है. और अगर आप ऐसे कोई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जो है, जैसे इंटरव्यूज के, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपका रिसर्च हो चुका है, ठीक है, यू हैव डन द रिसर्च, आपने डॉक्टरेट डिग्री आपको मिल गया है, उसके बाद आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको बोले कि आप जो है 4-5 स्लाइड में अपने रिसर्च के बारे में बता दीजिए, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक स्लाइड में जो है रिसर्च जो क्वेश्चंस थे उसको बताएं. एक स्लाइड में आप बता दें कि आपका प्रपोज मेथोडोलॉजी क्या था, जो फेजेस वाइज डेवलपमेंट या प्रपोज मेथोडोलॉजी या फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम आपने क्या डिजाइन किया था, और आपने फिर उसमें आउटपुट क्या अचीव किया. ठीक है. तो ये 3-4 स्लाइड में आप बता सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि जो कंक्लूसिव, जिसको कंक्लूजन जिसको बोल सकते हैं, आपका समरी, उसका आप जो है स्लाइड्स में डाल सकते हैं.
ठीक है। हाँ, लेकिन जी। जब आप रिसर्च प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो आपको जो है 15 से 20 मिनट मिलेगा। तब यूनिवर्सिटी में बोलिए या आपके रिसर्च सेंटर में बोलिए, 15 से 20 मिनट आपके पास रहेगा। सो आप ये सभी ओके, जो यूनिट्स जो भी मैंने अभी सेक्शंस बताए हैं, वो सभी सेक्शंस आप उसमें ऐड करेंगे। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस? Should we proceed to attendance? यस सर, अटेंडेंस।